Today I will start straight away with a revision of last class, and revision of last class के साथ we will start with today's portion. Okay, so far welcome to all. So far we have done a couple of classes of law का सिर्फ 2 ही क्लासेस हुआ है अभी तक 2 क्लासेस हुआ है लॉ का, ठीक है। आज तीसरा क्लास है. Today is the third class of law. Okay, now let me tell you, today is the third class of law, business law, and this paper 2, this paper 2 में law है और BCR है. It is a combination of law and BCR. Okay, and on the first class, I did not teach you for the first 1 hour or so. I had only spoken about CA, CS, CMA ka prospects and what are these courses all about as a career counseling for all commerce students, and degree courses क्या होता है, degree courses क्या नहीं होता है, ये सारा बातें मैं समझाया था पहला क्लास को, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग CA का सिलेबस लेके बात किए थे, accounts, math, eco and law, and I told you law is there at all levels and combined audit के साथ है inter and final levels. So it comprises 500 marks of 2000 marks if you recall, and I told you it's the toughest subject in foundation because foundation is a combo. Foundation is a combo of what? Foundation is a combo of two objective papers and 2 subjective papers, 2 objective and 2 subjective. यानी कि ये सारा बातें बोलने के बाद I had started with the syllabus. I had shown you the syllabus of CA Foundation, CS Foundation, CMA Foundation, and importance of them mark-wise. Okay, marks-wise. Okay, then I told you Indian Contract Act is the most common and the most ancient act in the syllabus. 1872 CMA है, CS में है, CMA में है, तीनों कोर्सेस में है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अपने शुरू किए थे. याद करो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाने से पहले मैं लॉ का एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ओवरव्यू दिया था. आई हैव गिवन यू अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ लॉ. आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज लॉ. आई सेड एक देश में कानून कैसे बनाया जाता है. मैं बोला था कि लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू for an individual to live in a family, for a family to live in a society, for a society, many societies make a district, and then we went upward, state and country, and international laws bhi hote hain between countries. Okay, then I spoke about India because we are part of India. There are 3 independent wings. Legislative wing, administrative wing and judicial wing. I said there are 3 independent wings: legislative, administrative and judicial. And सेंट्रल लेवल में हो या स्टेट लेवल में हो, ये गवर्नमेंट का 3 विंग्स होते हैं. मतलब इंडियन गवर्नमेंट का 3 पार्ट है. लेजिस्लेशन यानी कि कानून बनाने वाला पार्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कानून बना के उसको पालन करने वाला पार्ट, एंड जुडिशियल का मतलब हो गया कानून ठीक बना के नहीं और कानून ठीक से एडमिनिस्टर हो रहे कि नहीं, ये तय करने वाला होगा कोर्ट्स. ओके, then I told you parliament has 2 houses. How an act is enacted: a bill is proposed in the Lok Sabha or the lower house, then the bill gets passed in the Lok Sabha, it goes to Rajya Sabha. Then the third was bill once passed at Rajya Sabha, it goes to POI. POI kaun hai sir? That's a funny name. POI, POI. POI is the President of India, and the President signs on the bill, it becomes the act. Okay guys, all right. So then what is an act? एक एक्ट क्या है सर? एक एक्ट क्या है? मैं बोला था एक एक्ट पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट बनाता है, और एक्ट बनने के बाद
वो एक्ट देश में लागू हो जाता है, फोर्स में आ जाता है। एक्ट में बहुत सारा, एक्ट का स्ट्रक्चर समझाया था, बहुत सारा चैप्टर्स रहता है, हर एक चैप्टर्स में क्या रहता है, सेक्शंस, बहुत सारा सेक्शंस, और हर एक सेक्शंस के अंदर सब सेक्शंस। एंड एक्ट में बहुत सारा चैप्टर्स के नीचे एकदम रहता है शेड्यूल्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला 75 सेक्शंस आप लोग का सिलेबस में है फाउंडेशन लेवल में, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज द टाइटल ऑफ दैट. There are two dates pertaining to any act. I had said date of enactment and date of force. Now what was enactment? मैं बोला था पार्लियामेंट में जिस दिन पास होने के बाद प्रेसिडेंट उसमें जिस दिन साइन करता है उसको बोला जाता है डेट ऑफ एनैक्टमेंट. एंड डेट ऑफ फोर्स हो गया जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया ये एक्ट आने वाला है, देश में लागू होने वाला है. ओके, देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. Indian Contract Act 1872 I had started. I told you background of the act. I told you it is an act which was formulated or which was enacted pre-independence, because all of you know, studied in history, that 1947 is the year of independence of India, and 1872 is much prior to that date. 70 साल पहले का. Okay, so sir, this act is pre-independence and chalked by the British people. Yes, this act is pre-independent, and this pre-independent act is drafted by the British government. And the East India Company was in power that time, if you know the history, if you recall the history. Source क्या है? मैं बोला था अंग्रेज लोग colonial superpower थे. You've heard all these terms if you've read history, even if you've skipped history. हिस्ट्री अगर कमजोर है तो फिर भी आप लोग को जानना चाहिए कि ब्रिटिश फोर्सेस और ब्रिटेन had occupied many countries, not only India. They were superpower, and they had their establishments, they had their colonies all over the world. Australia, Canada, India, New Zealand, all these nations में they had their establishments, and सारा nations को एक साथ govern करने के लिए उन लोग का एक common law का सोर्स था, English common law. बात ये है कि जितना भी कंट्रीज का जिक्र मैं किया और जो जिक्र नहीं भी किया, तो ब्रिटिश रूल के अंदर अगर था तो उन लोग का सारे का कानून इंग्लिश कॉमन लॉ से ही बना. इंडिया इज नो एक्सेप्शन. Indian Contract Act and most of the acts which were formed before independence had its source in the English common law. Now history. I told you Indian Contract Act was applicable to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. I told you that it was, गौर करना, मैं was लिखा यानी कि अभी नहीं. It was. सर अभी क्यों नहीं? अभी लास्ट साल आर्टिकल 370 जो के MOU जैसा था बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, जब जम्मू एंड कश्मीर को साथ में लिया गया तब we had agreed, J&K state and Indian government had agreed कि जम्मू एंड कश्मीर का कानून जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट गवर्नमेंट बनाए, एंड वही आर्टिकल 370 से प्रोटेक्टेड था. अब आर्टिकल 370 उठ गया तो सारा यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट है, जो सारा इंडिया में लागू है, वहां पे भी लागू है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी वही हुआ. Now I have written on red, you can see in red, Indian Contract Act was applicable to the whole of India. Is hoga. Clear hai? Okay, sir. Sir, now what did you start in the last class? Last class, I told you that this act is an old act dating back to 1870s. Since the English, some of the English words are outdated.
एंड पुराना। तो ऐसा इंग्लिश वर्ड जाहिर है मैं जब पढ़ाऊंगा मैं तो आसान कर दूंगा, is not commonly used. Then I also told you in one of the two classes that देखो लॉ का लैंग्वेज जो है ना, लॉ का लैंग्वेज, वो लैंग्वेज आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वो लैंग्वेज से ही आपको मार्क्स मिलेगा। और वो लैंग्वेज रिप्रोड्यूस करने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड, you have to really work hard. Okay, now how will you ensure that that language you will be able to produce or reproduce? You have to practice writing. आज पहला चीज मैं जो बोल रहा हूं, आगे अगर नहीं भी बोला होगा तो सुन लीजिए, लिख लीजिए दिमाग में, कोट कर लीजिए एकदम, कि अगर कोई लिख के लॉ प्रैक्टिस ना करे, सब्जेक्टिव है 100 मार्क्स का, उसका टाइम में पेपर खत्म नहीं होगा, उसका लैंग्वेज अच्छा नहीं होगा, उसको मार्क्स अच्छा नहीं मिलेगा। यानी कि लॉ को लिख लिख के प्रैक्टिस करो। और कैसे लिखोगे? बुकिश वर्ड से। और वो वर्ड्स को मैं क्या बोलता हूं? टेक्निकल वर्ड। आपका आंसर में जो कंटेंट रहना चाहिए वो कैसा कंटेंट रहना चाहिए? टेक्निकल कंटेंट। टेक्निकल कंटेंट अगर रहेगा, टेक्निकल कंटेंट अगर रहेगा तो ही आपको मार्क्स मिलेगा। If you have technical content, then only you will have marks. Okay. Otherwise, you won't be awarded full marks. Is it clear? Okay. Now, I'm continuing. I'm continuing with today's discourse. Okay. I started Contract Act with some definitions. I told you definition का अपना अपना section है। इंडिया में ज्यादातर जो एक्ट्स है उसमें ज्यादातर जो सेक्शंस रहता है वो सारा सेक्शंस आर डेफिनेशन वाला सेक्शंस। वो सारा सेक्शंस आर डेफिनेशन वाला सेक्शंस। सर समझ में नहीं आया, वापस बोल रहा हूं। इंडिया में सेक्शन 2, मैं लास्ट क्लास बोला था, सेक्शन 2 of most of the acts comprises definitions। यानी कि इंडिया में कोई भी एक्ट खोल लो, डेफिनेशन कौन सा सेक्शन में मिलेगा? सेक्शन 2। 99% ऑफ द एक्ट्स में ये है। अब कुछ एक्ट्स में डेफिनेशन सेक्शन 2 में ना मिलके अदर सेक्शंस में भी मिल सकता है। एक्सेप्शंस आर देयर। फॉर इंस्टेंस पार्टनरशिप एक्ट, वो भी सिलेबस में है। हाँ है। पार्टनरशिप एक्ट में जब अपने जाएंगे तब अपने देखेंगे कि पार्टनरशिप एक्ट में जब अपने जाएंगे तब आपने देखेंगे कि ये जो पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट में डेफिनेशन इज नॉट गिवन अंडर सेक्शन 2। और एक एक्ट है जो सीए का सिलेबस में नहीं है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सीएस एंड सीएमए वालों का है। वहां पे भी डेफिनेशन सेक्शन 2 में नहीं है, अदर सेक्शंस में है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। Just 1 minute I need. Okay. Just a moment, guys.
Okay, like I was saying, that जो जो डेफिनेशंस है उसमें से पहला डेफिनेशन जो हम लोग पढ़े थे वो था कॉन्ट्रैक्ट का इटसेल्फ. दैट वाज इटसेल्फ फॉर कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट और डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट. देयर आई हैड मेंशनड अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट. कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अग्रीमेंट. बट क्या सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, उल्टा है सर. सारा कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट है, बल्कि सारा कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट है, सारा एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. यानी कि we had learned that contracts are agreements which are enforceable by law. Okay, इसका मतलब हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट्स वो एग्रीमेंट्स है जो लीगली एनफोर्स हो सकता है, जिसको लीगली एनफोर्सेबल किया जा सकता है. जैसे कि मैं बोला था, एक क्रिकेट प्लेयर अगर कोई क्लब को साइन करे तो वो साइनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी एन एग्रीमेंट. क्लब के साथ उसका एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल है. यानी कि वैसा एग्रीमेंट क्या है? वैसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है. और ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन सेक्शन 2H में दिया हुआ है. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट I had said that contracts are agreements, but all agreements are not contracts. Of course, definition से ही clear है. Contracts are agreements which are enforceable by law. मतलब सिर्फ वो agreements contract है जो enforceable by law है, और जो enforceable by law नहीं है वो contracts नहीं है. Okay, all right. Sir, agreement फिर क्या है? अच्छा, before I go further, कौन सा broader term है, agreement या contract? Agreement is bigger. उनमें से कुछ agreements जो enforceable by law होता है वो लोग क्या है? Contract. So bigger circle is agreement and smaller circle is contract. Within the bigger circle, those agreements are contracts which are enforceable by law. Got it? दिमाग में जा रहा है? Okay. Now, sir, agreement का definition क्या है? बताइए जल्दी से. मैं agreement का definition बोलने से पहले एक इक्वेशन लिखा था, वो इक्वेशन दिखा रहा हूं. देखो, contract is equal to agreement plus enforceability by law. Okay, then section 2E. ठीक है, section 2E क्या है? Every promise or set of promises which forms consideration for each other is an agreement. Every promise or set of promises which forms consideration for each other is an agreement. ठीक है ना? यानी कि सारा promises या सारा set of promises जो हम लोग वादा, promise का मतलब क्या होता है? वादा. मैं अगर वादा किया, बदले में मेरे को और एक वादा मिला, तो set of promises हो गया. तो every set of promises क्या हो गया? Agreement. And sir, which forms part of the consideration? हाँ, तुम जो करोगे उसके बदले कुछ करूंगा तुम, मैं जो करूंगा उसके बदले कुछ करोगे. बदले कुछ करने को क्या बोला जाता है? इन कंसिडरेशन. ठीक है? So agreements are promises or set of promises which forms consideration for each other. यानी कि मैं लिख दिया था agreement is equal to promise. And promise क्या था? Promise था offer when accepted becomes promise. यानी कि मैं अगर कुछ ऑफर करता हूं और आप वो ऑफर अपना लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, एक्सेप्टेंस दे देते हो, सहमत हो जाते हो, तब वो ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलके वादा हो गया. Unless my offer is accepted, is it a promise? No. If it is not a promise, it's not an agreement. And if it is not an agreement, it's not a contract. So for a contract, you need an agreement and enforceability by law. For an agreement, you need a promise. And for a promise, you need an offer which has to be accepted. As simple as that. Okay, sir. फिर मैं बोला था enforceability by law समझाने के लिए मैं बोला था enforceability by law तभी होता है एक चीज, जब वो enforceable by law तभी कहलाएगा जब
एक अग्रीमेंट से लीगल ऑब्लिगेशन पैदा होता है। ऑब्लिगेशन तो तीन तीन तरह का हो सकता है। ऑब्लिगेशंस कुड बी ऑफ थ्री टाइप्स। टाइप वन, सोशल ऑब्लिगेशन, जब हम लोग किसी को देख के मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, ग्रीट करते हैं। अभी मैं जैसे ही क्लास में आया, गुड मॉर्निंग सर, चैट होने लगा, मैं भी बोला गुड मॉर्निंग गाइस एंड गर्ल्स, ठीक है। सो मैं भी बोला गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये जो बातचीत हुआ अपने में, ये क्या था? सोशल ऑब्लिगेशन। कुछ लोग तो साइलेंट थे, मैं क्या गुस्सा हो गया? मैं क्या बोला, अरे तुम्हारा ऑब्लिगेशन क्यों नहीं निभाया, गुड मॉर्निंग सर क्यों नहीं बोला? नहीं, इट्स अ सोशल ऑब्लिगेशन, इट्स नॉट अ लीगल ऑब्लिगेशन। आपको सजा नहीं मिलेगा। सो the idea is obligation out of three types: social, moral and legal. Which type of obligation is created through contract? And I told you, contract से सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन पैदा होता है। और ये लीगल ऑब्लिगेशन ही नहीं, लीगल राइट भी पैदा होता है। यानी कि मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट किया एज अ प्लेयर विद अ क्लब, मेरे को राइट है पैसा मिलने का और मेरा ऑब्लिगेशन है खेलने का, ठीक है। सो दिस इज, every contract creates two things: legal obligations and legal rights, and thus they are enforceable by law. Okay, so then I told you the definition as per the book. We have seen the book also. The definition of the book is as per section 2H of Indian Contract Act. Contract is defined as agreements enforceable by law. Okay, now after that I had started with one more thing, that is, just a moment. Okay, yes, I'm just opening the book, guys. Hope all can see. फॉर द मोमेंट CS and CA में जो लोग कर रहे हैं, हम लोग फॉलो क्लास के लिए तो तीन तीन बुक फॉलो नहीं कर सकते, तीन कोर्सेज का। क्लास के लिए एक ही बुक फॉलो करना है। तो क्लास के लिए जो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं, दैट इज द CA इंस्टीट्यूट्स मटेरियल। ओके सर, यही लास्ट क्लास दिखाए थे। हाँ, I'd asked you guys to read it, study it. जो लोग ज्यादा पढ़ रहे थे, आई होप इतना एटलीस्ट पढ़ लिए, ठीक है। There were some students who had texted me, who had expressed their interest to study law. I am very thankful to them. They have thanked me for making it interesting. I am really honored, and thank you guys for giving such a feedback to me personally. And I will tell you कि जितना पढ़ा रहा हूँ उतना अच्छे से पढ़ो, डेप्थ में पढ़ो उतना, और अच्छे से पढ़ो। डेप्थ में पढ़ाई करने का मतलब है एक चीज को ठीक से जानना, with finesse, with expertise, with knowledge based study. तो हम लोग नॉलेज बेस्ड स्टडी करेंगे। नॉलेज बेस्ड स्टडी में ना, शुरुआत में पेस स्लो रहेगा या फास्ट? स्लो लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग। एक बार सीख जाओ, उसके बाद स्पीड पकड़ो। तो शुरुआत में मैं बहुत धीरे 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 पढ़ाऊंगा और तरकीब भी सिखा दे रहा हूँ, नहीं तो लगेगा अरे अचानक धीरे पढ़ा रहा है, जोर से पढ़ा रहा है। तो तरकीब है, शुरुआत में गो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। पुराना ओल्ड डायलॉग है, मैं भी बचपन में सुना था किसी से। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस,
टॉर्टोइज और रैबिट वाला स्टोरी। तो द आइडिया इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, कंसिस्टेंसी रहना चाहिए और ठीक से पढ़ाई होना चाहिए, हर रोज घर में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये पढ़ने के लिए कहा था आप लोग को, एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड देन अग्रीमेंट्स एंड देन आई सेड प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, देन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस भी हम लोग क्लास में किए थे, याद आ रहा है? ओके, मैं एक बार याद दिलाया, there are new students I know. So today we are starting with essentials of a valid contract, and that is the first thing. So sir, half an hour we've spent on revision. Yes, that is why slow. That is why slow. And that is why now I'll teach, you know, the remaining time of the class full-fledged on new topic. Okay. So अभी तक तो अपने नया चीज पकड़े ही नहीं, अभी नया चीज पकड़ रहे हैं, ठीक है? ओके, नाउ आ जाओ, शुरू करते हैं नया चीज। ओके सर, सर बताइए क्या चीज है ये और क्या इसमें करना पड़ेगा? मैं बता दूं, इसमें फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज, जस्ट अ मोमेंट, okay, so like I was saying, first topic of the day, first topic of the day is essentials of a valid contract. सर क्या है ये, बताइए, सिखाइए, समझाइए। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स लगता है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वैलिड कब कह सकते हैं, क्या रहने से एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। तो कुछ वैलिड एलिमेंट्स रहना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए। सो दोज एलिमेंट्स आर नोन एज द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं? एक चीज को वैलिड होने के लिए जो चीजें लगता है, उस चीज को बोला जाता है क्या, एसेंशियल्स ऑफ वैलिडिटी। लेट्स से मेरा लाइसेंस का वैलिडिटी क्या है, मेरा लाइसेंस का, ड्राइविंग लाइसेंस का वैलिडिटी, ड्राइविंग लाइसेंस का अप टू डेट में लिखा रहेगा, वैलिड अप टू, है ना? पासपोर्ट का वैलिडिटी उसका वैलिड अप टू में लिखा रहेगा, है ना? तो हर चीज का वैलिडिटी क्या है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या लगेगा, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स, वो देखना पड़ेगा। ओके, सो देखो, दो चीज बुक में बोला है, मैं थोड़ा सा ये समझा दूंगा, नहीं तो ये कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। सब लोग ये बोर्ड, सॉरी, ये बुक में चार्ट में देखो, टोटल 11 पॉइंट्स है। सर 11 पॉइंट्स क्यों बोल रहे हो? देखो लेफ्ट हैंड साइड में 6 है और राइट हैंड साइड में देयर आर 5 पॉइंट्स, नॉट 6। कैन यू ऑल सी? यस। नाउ आई वाज टेलिंग यू दैट राइट हैंड साइड में देयर आर 5 एंड लेफ्ट हैंड साइड में देयर आर 6। टोटल 11 एसेंशियल्स है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। हाउ मेनी एसेंशियल्स? 11 essentials. So 11 essentials of a valid contract are there, out of which 6 are given in the act, given in the act, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 6 दिया हुआ है, एंड 5 आर डिराइव्ड। डिराइव्ड मतलब हम लोग सोच के निकाले 5, तो कुल मिला के कितना हो गया? 6 और 5 11। अब समझ में आ रहा है? अब देखो ये हेडिंग पढ़ो, समझ में आएगा। एज गिवन बाय द सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नॉट गिवन बाय सेक्शन 10 बट आल्सो एसेंशियल। मतलब ये 5 आर नॉट गिवन बाय द एक्ट, बट ये 6 जो सेक्शन 10 में कवर्ड है ऑफ द एक्ट,
आर गिवन बाय द एक्ट, सेक्शन 10 तो पार्ट ऑफ द एक्ट ही है। क्लियर है? क्लियर है? You want to copy, you can copy. ओके, ऑल राइट सर, ये तो समझ में आ गया, बहुत आसान चीज है। हाँ, अभी जो जो एक्ट में एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल्स दिया हुआ है वो एक के बाद एक समझेंगे। वी विल लर्न दैट वन बाय वन। ठीक है, व्हाट आर द एसेंशियल्स गिवन इन द एक्ट? ओके, ऑल राइट। नाउ what are the essentials? देखो, एक सवाल आया है सर, ये 6 एक्ट में दिया हुआ है। एक्ट में दिया हुआ है तो एक्ट को तो लेजिस्लेटिव बॉडी बनाया, तो लेजिस्लेटिव बॉडी जब बनाया तब यानी कि पार्लियामेंट हो, जो भी हो, जो बनाया कानून उसने बनाया। तो ये 6 पॉइंट्स एक्ट ने बनाए, ये 5 पॉइंट्स किसने बनाया? देखो, बच्चे का सवाल, बच्चा जानना चाहता है, बच्चा गलत नहीं है, बच्चा का स्टाइल और अप्रोच ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चे को पता नहीं है एक्ट में कभी ऐसा लिखा ही नहीं रहता है। सेक्शन 10 में ऐसा नहीं लिखा रहेगा एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड। सेक्शन 10 में जो लिखा है, देखो कैसे लिखा है, all agreements are contracts if they are made by free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and are not expressly declared to be void. This is language of section 10. From this language of section 10, my dear, we are interpreting that section 10 ये सब बात बोल रहे, and this interpretation is from studying the entire act. So whatever we are doing, एसेंशियल्स बोल के स्टडी करे, एसेंशियल्स बोल के ना स्टडी करे, ये अपना इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट है। पार्लियामेंट कभी ऐसे नहीं बोलता है। ठीक है बच्चा? ओके, नाउ द आइडिया इज वी आर स्टडिंग द एक्ट, एंड लेट मी टेल यू, द एक्ट का लैंग्वेज इज नॉट लाइक दिस। द एक्ट डज नॉट हैव लैंग्वेज लाइक दिस चार्ट। ऐसा चार्ट एक्ट में नहीं बनाया हुआ है। एक्ट में लैंग्वेज ऐसा है जैसे मैं दिखाया, देखो टेबल के नीचे से सेक्शन 10 लिखा हुआ है। सेक्शन 10 में एक लाइन है, और एक लाइन को खींच के कैसे समझना है, वही तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है, वही तो कानून है, वही तो लॉ है। इसीलिए तो लॉ इतना चैलेंजिंग है। सर यहाँ पे तो बुक में दे दिया, काफी बार बुक में नहीं दिया रहेगा, तो फिर मैं हूं ना। सो द आइडिया इज सर, हाँ तो फिर यही है लॉ, हाँ यही है लॉ। इसीलिए मैं बोला फाइनल तक का जर्नी है और उसके बियॉन्ड भी जर्नी है। सीए बनने के बाद आपको ये बुक्स देख के नहीं बोलना है। क्लाइंट नया नया चीज लेके आएगा, तब क्लाइंट को जवाब देना है आपको, दिमाग इस्तेमाल करके, सोच के कि क्या होगा ये लैंग्वेज का मीनिंग। ओके, नाउ गुड क्वेश्चन शायन, वेरी गुड क्वेश्चन, and I always encourage good questions and silly questions also I encourage. Okay, now the idea. सर आप जो बोल रहे थे बताइए, आप बोले essentials of a valid contract 11 essentials है। ये 11 essentials से ज्यादा भी हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ किताब में दिया हुआ है 11 essentials, और उसमें बोला जा रहा है कि सेक्शन 10 में 6 essentials दिया हुआ है, वो तो देखे ही है। एंड सेक्शन 10 के बाहर हम लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं कि 5 और एसेंशियल होना चाहिए। और ये सैक्रोसैंक्ट का मतलब हुबहू 11 ही है ऐसा नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, 11 से ज्यादा भी आप सोच सकते हो ऊपर पढ़ के, 11 से कम भी सोच सकते हो ऊपर पढ़ के। कम नहीं सोचोगे, 11 तो है ही। सो द आइडिया इज इट्स ऑल अबाउट सोच, यानी कि इंटरप्रिटेशन। बट हाँ, सेक्शन 10 पढ़ के दिख रहा है कि 6 एसेंशियल सेक्शन 10 में लिखा हुआ है। क्लियर है?
ओके, तो 6 एसेंशियल्स क्या क्या है पहले वो पढ़ेंगे. नंबर 1 इज अग्रीमेंट. नंबर 1 इज अग्रीमेंट. 6 essentials given in section 10. 6 essentials given in section 10. नंबर 1 क्या है? अग्रीमेंट. सर इसका मतलब क्या है? बहुत आसान मतलब है. कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक चीज को क्या होना पड़ेगा? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. So without an agreement, can there be a contract? The answer is no. So the first basic essential element of a valid contract is the contract needs to be an agreement. है ना? पहले agreement तो बनो. बोलो. First essential prerequisite to study CA is to pass class 12. Class 12 तो पास करो. एक बेसिक मिनिमम बेयर मिनिमम एजुकेशन लेवल तो रहे, तो एक एग्रीमेंट तो रहे. फिर वो एग्रीमेंट को में और क्या क्या चाहिए वो तो देखेंगे. तो पहला एसेंशियल एलिमेंट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट. क्लियर है सबको? ओके. तो सर सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट्स इज फ्री कंसेंट. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. फ्री कंसेंट ऑफ whom? इसको थोड़ा चौड़ा करते हैं, बड़ा करते हैं, स्ट्रेच करते हैं तो समझ में आएगा. फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड. फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इज द सेकेंड थिंग. फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड का मतलब सर, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड का मतलब है कि आज अगर दो व्यक्ति मिस्टर ए एंड मिस्टर बी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे, आज अगर दो व्यक्ति 2 persons मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, दे मस्ट गिव देयर कंसेंट फ्रीली और फोर्सिबली. फ्रीली. इफ 2 persons मिस्टर ए एंड मिस्टर बी are entering into a contract, they must give their consent freely without any bias, without any force, without any pressure. So that is known as free consent. That is known as free consent. यानी कि आज अगर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, आज अगर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं कि चलो ये ऑफर मैं तुमको दे रहा हूं, ये ऑफर मैं तुमको दे रहा हूं, क्या तुम ये मंजूर करते हो? तो दूसरा व्यक्ति अपना खुद सोच के, विदाउट एनी दबाव, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट कोई सर पे बैठ के उसका, अगर खुद ब खुद बोल रहे हैं हाँ मुझे मंजूर है, तो ये फ्री कंसेंट है या नहीं है? फ्री कंसेंट है. कंसेंट का मतलब होता है सहमति. सहमति कैसे आया? फोर्स के साथ या फ्रीली? फ्रीली. तभी तो जाके ये लीगली एनफोर्सेबल बन पाएगा. किसी को दबाव में डाल के, किसी को गन पॉइंट में तुम अगर कुछ मंजूर कराते हो, क्या वो लीगली एनफोर्स कर पाओगे? नहीं. क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? नहीं. तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है. और एग्रीमेंट कैसे होना जरूरी है? फ्रीली या फोर्सेबली? फ्रीली. यानी कि दूसरा एसेंशियल एलिमेंट इज दैट ऑफ फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज. और ये फ्री कंसेंट लेके जो डिस्कशन होगा आगे का आने वाला क्लासेस में, बहुत गहरा होने वाला है, बहुत गहरा. फ्री कंसेंट टूट जाता है. फ्री कंसेंट टूट जाता है और इसका टेक्निकल इंग्लिश है विटिएटेड. फ्री कंसेंट गेट विटिएटेड और ब्रोकन. विटिएटेड और ब्रोकन ड्यू टू one or more of due to any one or more of the following. ये 5 चीज जो मैं बोलने वाला हूं, ये 5 में से कोई भी एक या ज्यादा के लिए फ्री कंसेंट नहीं रह सकता है. क्या क्या 5 चीज? टेक्निकल शब्द है सारे, नया चीज सुनोगे, घबरा मत जाना, मैं समझाऊंगा. नंबर 1 इज कोएर्शन. नंबर 1 इज कोएर्शन.
Number 2 is undue influence. Number 3 is fraud. Number D is misrepresentation. And number 5 is mistake. यानी कि बहुत आसान चीज मैं बता रहा हूं. मैं बोल रहा हूं कि सहमति खुला होना चाहिए. पार्टीज का सहमति क्या होना चाहिए? खुला. खुला का मतलब क्या सर? चेंज नहीं. खुला का मतलब है फ्री, where they are freely able to think and decide and choose. पार्टीज का सहमति हमेशा क्या होना चाहिए? फ्री. और ये फ्री कंसेंट नहीं रहता है जब इस कोई भी एक वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो. पहला मैं क्या लिखा? कोएर्शन. कोएर्शन का मतलब है एनी थ्रेट और कमिटिंग एनी हीनियस क्राइम. जैसे कि किसी को एकदम गन पॉइंट में आप रख के उसको एग्री करा रहे हो, दैट इज कोएर्शन. किसी को किडनैप करके उसको एग्री करा रहे हो, दैट इज कोएर्शन. सो ऑल दीज थिंग्स where you are applying physical force to achieve the consent मिलाने के लिए आप जहां पे फिजिकल फोर्स का अप्लाई कर रहे हो, ऐसा चीज को क्या बोला जाता है? कोएर्शन. क्लियर है? और मैं बोला ये जो 5 चीज है इसको इन डेप्थ यूनिट 2 में समझाया जाएगा. यूनिट 2 का पार्ट है, यूनिट 2 3 का पार्ट है. ठीक है ना? और वहां पे अपने बहुत गहराई में डेप्थ में जाके ये पढ़ने वाले हैं. बट अभी मैं जस्ट समझा रहा हूं, तो अभी इसको लेके ज्यादा सवाल ना करना. जहां तक बोल रहा हूं वहां तक समझ में आ जाए तो काफी है. हाँ, वो अगर समझ में नहीं आए तो ठीक है. डोंट स्ट्रेच योर इमेजिनेशन, डोंट ओवर थिंक, डोंट आस्क things which I am not telling, because I have to cover it in unit 2 with a lot of depth, so it is already there. Okay, now sir undue influence क्या है? फिर undue influence हो गया कि नाम से ही पता चल रहा है, इन्फ्लुएंस मतलब किसी को बहका लेना, यानी कि किसी को इन्फ्लुएंस कर लेना, किसी का दिमाग पे काबू कर लेना. होता है ना, तुम लोग सुने हो ना, इंडिया में बहुत सारा बाबाजी है, बाबाजी से भर्ती देश है. ठीक है, हम लोग बाबाजी लोग को बहुत मानते हैं, सुनते हैं उन लोग का बात. whether or not what they are saying we always try to think what they are saying is correct. ठीक है. so the idea is when we talk about undue influence, कोई अगर तुमको अपना इन्फ्लुएंस में ले आए और बोले ये करो तुम्हारा सही होगा, और तुम उसका वश में आके तुम कर देते हो कॉन्ट्रैक्ट साइन, वो तुम्हारे दिमाग के ऊपर मेंटल प्रेशर दिया है, फिजिकल फोर्स नहीं दिया है, डराया धमकाया नहीं, उसका इन्फ्लुएंस है तुम्हारे ऊपर, तुमको इन्फ्लुएंस कर दिया और तुम कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट में भी तुम्हारा कंसेंट क्या फ्रीली आया या कोई वजह से आया? कोई वजह से आया. सो दीज आर कोएर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस. कोएर्शन का मतलब क्या हो गया? फिजिकल फोर्स. एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? मेंटल प्रेशर. अभी के लिए मैं बोला ये डेप्थ में हम लोग पढ़ने वाले हैं. तुषार पूछा है, तुषार कहां गया भाई? हाँ, तुषार पूछा है कि सर क्वेश्चन और एक बार बता दीजिए. सर क्वेश्चन और एक बार बता दीजिए. अभी तो बताया क्वेश्चन कुछ भी नहीं है. मैं क्या बोला? क्वेश्चन इज फिजिकल फोर्स का एप्लीकेशन, यानी कि किसी को फिजिकल थ्रेट दिए, फिजिकली हार्म करने के थ्रेट दिए, किसी को बोले कि तुम ये नहीं करेगा तो किडनैप हो जाएगा,
डरा रहे हो, फिजिकल थ्रेट दे रहे हो, वैसा चीज करके किसी को फोर्सिबली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराना इज कोएर्शन। समझ में आया तुषार? ओके, नाउ ओके, भाई तुषार, तुम क्लास में हो या नहीं हो? समझ में आया तो लिख तो सकते हो यस, नहीं आया तो लिख सकते हो नो। आई एम नॉट गिविंग यू क्वेश्चन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, थैंक यू, यस लिखा। ओके, एक्चुअली नेट में प्रॉब्लम है, मेरे को पता है नेट में बहुत प्रॉब्लम है। I know a lot of you are having buffering problems and stuffs. Please bear and cooperate and have patience. Thank you. Okay. Yes. सर एक क्वेश्चन है, बोलो क्वेश्चन बताओ। एक क्वेश्चन है बोल के कन्वर्सेशन को बढ़ाओ मत, क्वेश्चन बताओ। ये देखो, एक लड़का है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक लड़का है, वो आगे का सोचता है। शायद तुम लॉ पढ़े हुए हो, शायद तुम लॉ पढ़े हुए हो, शायद तुम दोबारा पढ़ रहे हो, जो भी हो, द आइडिया इज आई टोल्ड यू दैट डोंट थिंक अहेड। मतलब यूनिट 2 में जाके मैं जो पढ़ाने वाला हूं उसको अभी अगर मैं पढ़ा दूं तो अभी का पढ़ाई यूनिट 2 में जाके पढ़ाऊंगा तो हाथ पैर के जगह आ जाएगा, पैर हाथ के जगह आ जाएगा। यही होता है तुम जो कर रहे हो उसका, यू नो। मैं प्रतनु को नहीं बोल रहा हूं, प्रतनु तुम घबराओ मत, तुमको नहीं बोला, मैं दूसरा एक जन को बोला, जाके उसको खराब ना लगे पब्लिकली, इसलिए नाम नहीं लिया। ठीक है, ओके, ऑल राइट। प्रतनु तुम पूछे सर हाउ कैन कॉन्ट्रैक्टिव प्रूव ही वाज अनड्यू मेंटल प्रेशर। हाँ, तुमको भी यही बोलता है प्रतनु, अभी देखा तुम्हारा सवाल। ठीक है, तुम्हारा नाम भी ले लिया अनिल। ठीक है, हाँ, अनड्यू इन्फ्लुएंस में मैं आ रहा हूँ, डोंट वरी। ओके, नाउ कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज टीचिंग, I said coercion is physical force, undue influence is mental pressure. घर में दबाव देके, प्रेशर दे के किसी को कुछ करवाया गया है, प्रॉपर्टी किसी का नाम पे करवा दिया गया है, वहां पे जिस व्यक्ति को प्रेशर देके, मेंटल प्रेशर देके, मेंटली एक्सटॉर्ट बोला जाता है, मेंटल एक्सटॉर्शन करके फोर्सिबली कुछ कराया गया, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, और वैसा कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। अभी के लिए इतना ही मैं बोला आगे जाके देखेंगे यूनिट 2 में। ठीक है, ओके, तो एक हो गया फिजिकल प्रेशर, एक होता है मेंटल प्रेशर। ओके, फ्रॉड। सर फ्रॉड क्या है? तुम लोग को एक चीज मैं बोला ही नहीं, आगे पढ़ने से पहले, आगे जाने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। तुम लोग सीए इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर करा लिए होंगे या बहुत लोग नहीं कराए होंगे। मेरे ख्याल से इस बार नवंबर में एग्जाम होगा कि नहीं मेरे को पता नहीं। सर जून में लॉकडाउन अगर एक्सटेंड हुआ तो जून का एग्जाम भी कैसे होगा? जून का एग्जाम कैसे होगा? तो सर पीछे हो जाएगा, आप क्या बोलने का कोशिश कर लो? हो सकता है। मैं सीए इंस्टीट्यूट में जब पढ़ाने या जब गया तब मेरे को ये खबर सुनाई दिया था मार्च में जब खुला था कि इस बार एग्जाम पीछे हो सकता है। एंड सिर्फ यही नहीं, अभी लॉकडाउन एक्सटेंड होगा मेरे ख्याल से हर हालत में, और लॉकडाउन अगर एक्सटेंड हो गया तो फिर हो सकता है कि एग्जाम ना हो जून वाला। तो सर नवंबर वालों का क्या होगा? नवंबर में प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो लोग शायद पीछे कर दे। ये अचानक सर क्यों बोले? क्योंकि मैं जो भी बोला वो अगर झूठ मान के बोला,
झूठ मान के बोला, तो ये रहा एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉड, ये रहा एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉड। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब है कोई जानबूझ के अगर तुमको झूठ बोल रहा है, कोई जानबूझ के अगर तुमको उल्लू बनाने के लिए झूठ बोल रहे हैं और तुम उसका बाद में आके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे रहे हो, सो दैट कॉन्ट्रैक्ट में भी तुम्हारा कंसेंट कैसे हासिल हुआ? फ्रॉड से, फ्रीली नहीं। यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं फ्री कंसेंट, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट कब कब नहीं रहेगा? क्वेश्चन से। क्वेश्चन का मतलब मैं क्या बोला? क्वेश्चन का मतलब है फिजिकल थ्रेट। फिजिकल थ्रेट का मतलब सर, फिजिकल थ्रेट का मतलब जहां पे मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहा हूं, जहां पे मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहा हूं फोर्सिबली, डरा के धमका के, दैट इज क्वेश्चन। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब बस में करके, इन्फ्लुएंस करके। फ्रॉड मतलब झूठ बोल के, जानबूझ के झूठ बोल के, धोखा देने के। ठीक है, तो ये तीनों तीनों आर केसेस वेयर फ्री कंसेंट इज नॉट देयर। कोई पूछ रहे कोई पूछ रहे कि कोई पूछ रहे सर, अगर गन पॉइंट में रख के भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि फ्री कंसेंट से साइन किया, फिर क्या होगा? बोलो, कैसा बात कर रहे, कैसा बात कर रहे? गन पॉइंट में रख के किया मतलब फ्री कंसेंट नहीं था, बाद में जाके कॉन्ट्रैक्ट को मैं बोल दूंगा मेरे को गन पॉइंट में कराया था, फ्री कंसेंट नहीं रहा फिर, अगर प्रूव कर पाया। ठीक है, ओके, ऑल राइट। नाउ द आइडिया इज सर, आप क्या पढ़ा रहे थे? आज का पहला टॉपिक मैं बोला था कि एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में मैं बोला there are 11 essentials, 6 are given in the act and 5 are derived from the act. 6 essentials given in the act, 6 essentials given in the act. Number 1 is agreement होना चाहिए, नंबर 2 फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट का जो डिस्कशन है वो बाद में जाके बहुत विस्तारित रूप में है, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर फिर हम लोग जो फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व है, हम लोग देखें कि एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व होना चाहिए। फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कोई भी 5 में से एक तरीके से टूट सकता है, कोई भी 5 में से एक तरीके से टूट सकता है। एक सौरभ बोल के एक लड़का है, देयर इज अ बॉय कॉल्ड सौरभ मंडोल। ही इज आस्किंग कि सर मेरे को बताइए, ये भी सेक्शन 2 का कौन सा डेफिनेशन में आता है? तुम लोग बताओ, ये सेक्शन 2 है या सेक्शन 10 है? क्या लिखा हुआ है बताओ भाई। essentials of a valid contract, is it a definition or is it a, you know, is it saying कि क्या क्या essentials लग सकता है? बोल रहे सेक्शन 2 का कौन सा डेफिनेशन में essentials आता है? माफ करना, आपका ज्ञान मेरे पे नहीं है, आपका सवाल का आंसर मैं नहीं दे सकता हूँ। सौरभ मंडल को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ही इज आस्किंग सेक्शन 2 का कौन सा डेफिनेशन में एसेंशियल्स मिलेगा, जहां पे मैं पढ़ा रहा हूँ स्टार्ट करके कि you know 6 essentials are given under section 10 and 5 are derived. So section 10 को इंटरप्रेट करके मैं लैंग्वेज भी समझाया कि सेक्शन 10 को इंटरप्रेट करके हम लोग को समझ में आता है कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए 6 एसेंशियल्स लगता है, और वो सेक्शन 10 में लिख भी दिया। वो बोर्ड नहीं देख रहा है, कुछ भी नहीं देख रहा है, खुद से मन घड़त प्रश्न सवाल करते जा रहा है। सर ये एसेंशियल का डेफिनेशन भी सेक्शन 2 में दिया हुआ रहता है क्या? हाँ रहता है। ठीक है, नाउ द आइडिया इज सर ये सेक्शन 10, हाँ सेक्शन 10 पढ़ रहे, यहाँ पे सेक्शन 10 लिखा है, हाँ सेक्शन 10, यहाँ पे नॉट गिवन इन सेक्शन 10 लिखा है, तीन जगह में लिखा है, और यहाँ तक मैं भी लिख दिया। और फिर ये सवाल आता है तो टीचर थोड़ा सा अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ जाता है। ठीक है, ओके, नाउ एनीवे, थैंक यू सौरभ मंडल। ओके, नाउ
6 essentials given in section 10. Number 1 is agreement. Number 2 is free consent of the parties involved. मैं बोला free consent of the parties कब कब टूट जाता है? जब नंबर 1 क्वेश्चन हुआ, जब नंबर 2 अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, जब नंबर 3 फ्रॉड हुआ. सर व्हाट इज मिसरिप्रेजेंटेशन? फ्रॉड इज ऑलवेज इंटेंशनल. फ्रॉड है इंटेंशनल. मिसरिप्रेजेंटेशन इज अनइंटेंशनल. अनइंटेंशनल. ओके, मिस्टेक का मतलब होता है गलती. तो कोई भी चीज से ये पांचों चीज से, मिस्टेक का मतलब सबको पता है, अभी जानने का दरकार नहीं है. इन डेप्थ ये कोई भी चीज जानने का दरकार नहीं है. ये दिखाना ही नहीं चाहिए था, मैं दिखा दिया. बट जितना दिखा रहा हूं उतना देखो कभी कभार, नहीं तो बद हजम हो जाएगा. ठीक है. सो द आइडिया इज, सर तो आप क्या बोले? आप बोले एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अपने पढ़ रहे. हाँ, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट चाहिए? सर इसमें अपने क्या पढ़े? इसमें अपने पढ़े कि पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या चाहिए? एग्रीमेंट होना पड़ेगा. क्या होना पड़ेगा? एग्रीमेंट. फिर हम लोग क्या पढ़े? फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज होना चाहिए. पार्टीज जो कंसेंट दे रहे हैं, सहमति दे रहे हैं, वो फ्रीली दे रहे हैं. अच्छा, फ्रीली कब नहीं माना जाएगा उन लोग का कंसेंट? अगर क्वेश्चन से हासिल हुआ उन लोग का कंसेंट, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस से हासिल हुआ, या फिर फ्रॉड से हासिल हुआ, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन से हासिल हुआ, या फिर मिस्टेक से हासिल हुआ. कोई भी पांच में से कोई भी चीज से अगर उसका कंसेंट हासिल हुआ तो फिर वो फ्री कंसेंट नहीं कहा जाएगा. ठीक है ना? नंबर 3. ओके सर, नंबर 3. व्हाट इज नंबर 3? नंबर 3 इज कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज. कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज. सर ये पांचों चीज क्या इन डेप्थ बाद में है? हाँ, 4 बार बोल चुका हूं. ये भी पूछ लो और एक बार कोई, और ये भी पूछ लो ये सेक्शन 2 का कौन सा डेफिनेशन पे लिखा है. ठीक है. ओके. नंबर 3 इज कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज. कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज. ओके सर. सर कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज मतलब इंग्लिश वर्ड है. कुछ लोग कमजोर है इंग्लिश में, कुछ लोग को दिखाई नहीं देता है सेक्शन नंबर कहां लिखा रहता है, तो मैं बोल दे रहा हूं उन लोग के लिए. कॉम्पिटेंसी का मतलब काबिलियत. लिख रखो हिंदी में, काबिलियत. कॉम्पिटेंट पार्टीज मींस पार्टीज काबिल है कि नहीं, लायक है कि नहीं. तो कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज का मतलब हो गया कि पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का लायक है कि नहीं. सर कब होगा लायक? ये 6 चीज मैं जो बोलने वाला हूं इससे नालायक बन जाएगा. इससे नालायक बन जाएगा. 6 में से एक भी चीज होगा तो पार्टी नालायक कहलाएगा. क्या क्या सर? इनकॉम्पिटेंसी क्या क्या चीज है? नालायक का मतलब क्या? इनकॉम्पिटेंसी. तो इनकॉम्पिटेंसी क्या क्या 6 चीज से होता है देखते हैं. नंबर 1, बोला जा रहा है कि अगर पार्टी का उम्र 18 से नीचे है, बिलो 18 years of age है, if the party is below 18 years of age then it is a incompetency. यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए मिनिमम कितना उम्र का होना पड़ेगा? 18 प्लस, 18 एंड अबव. यानी कि अबव 18 को अपने बोलते हैं मेजर. अबव 18 को अपने क्या बोलते हैं? मेजर. और बिलो 18 को अपने बोलते हैं माइनर. अबव 18 को मेजर बोलते हैं और बिलो 18 को माइनर बोलते हैं. तो इनकॉम्पिटेंट मेजर नहीं, इनकॉम्पिटेंट माइनर हुआ, कॉम्पिटेंट हो गया मेजर. कॉम्पिटेंट हो गया मेजर. मेजर इज कॉम्पिटेंट एंड माइनर इज इनकॉम्पिटेंट. सर मेजर का मतलब क्या है? मेजर का मतलब हो गया जो अबव 18 years of age है. 18 और अबव, 18 और अबव, 18 years old और अबव. एंड माइनर का मतलब बिलो 18, बिलो 18. तो सर कॉम्पिटेंट एंड इनकॉम्पिटेंट, तो कौन सा पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने लायक है? मेजर. मेजर इज कॉम्पिटेंट. सर कौन सा पार्टी नॉट कॉम्पिटेंट है, इनकॉम्पिटेंट है? माइनर. माइनर का मतलब क्या होता है? जो
बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज है। मेजर का मतलब क्या होता है? जो अबव 18 ईयर्स ऑफ एज है। क्लियर है? ठीक है सर। ओके, नाउ the next thing, the next thing, what is the next thing? Sir, incompetency. Incompetency number 2, the second point for being an incompetent, the second point for being an incompetent party to a contract क्या है सर? बताइए। second party to being an incompetent party for a contract, to be considered as incompetent to, you know, contract. Just a moment, guys. Okay, let's carry on. The second point for incompetency of a party, incompetent कब कहलाएगा? second is the fact कि पार्टी का मन ठीक है या नहीं। अगर पार्टी का मन ठीक नहीं है तो उसको कहलाएगा अनसाउंड माइंड। पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तब अगर अनसाउंड माइंड में है तो उसको इनकॉम्पिटेंट पार्टी कहलाया जाएगा, क्योंकि उसका मन ठीक नहीं है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट में लाया वो ठीक किया कि नहीं उसको पता नहीं। और अगर वो साउंड माइंड में है, होश और आवाज, ठीक है, साउंड माइंड में है, तो फिर ही इज कॉम्पिटेंट। सो टू बिकम अ कॉम्पिटेंट पार्टी हिज माइंड नीड्स टू बी साउंड और अनसाउंड? साउंड। सर अनसाउंड माइंड का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज मेंट बाय अनसाउंड माइंड? unsound mind means when you know, unsound mind का मतलब है जब मैं ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि मेरा मन ठीक नहीं है। सर पागल क्या अनसाउंड माइंड होता है? हाँ, पागल अनसाउंड माइंड होता है। कुछ लोग, मैं जब पढ़ा रहा हूं क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये 5 पढ़ा रहा हूं, कुछ लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि सर ये सब का डेफिनेशन क्या है? मैं इसका डेफिनेशन का सेक्शन नंबर पूछ रहा हूं। अच्छा बोलो, मैं जहां तक पढ़ा रहा हूं, टीचर जहां तक दिखा रहे उतना भी देखना चाहिए कभी कभार। वो पूछ रहे इसका, तो वैसा व्यक्ति क्या साउंड माइंड का है? और उसके ऊपर वही व्यक्ति पूछ रहे सर आपका व्हाट्सएप में फोटो नहीं दिख रहा है। आप सोचो ऐसा व्यक्ति क्या साउंड माइंड का है या अनसाउंड माइंड का है? सॉर्ट ऑफ मंडल, तुम अगर क्लास में रहना चाहते हो, सही तरीके से पेश आओ, चैट ठीक से करो, ठीक है? व्हाट्सएप में तुमको मेरा फोटो देखना है, क्या देखना है? व्हाट्सएप में देख क्यों नहीं पा रहे हो? एंड देन यू आर आस्किंग, हाँ ही इज इनकॉम्पिटेंट, तो शायद यू आर करेक्ट, ठीक है? देन ही इज आस्किंग दैट फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, क्वेश्चन, ये सब का डेफिनेशन मैं पूछ रहा हूं। अरे तू जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़, फिर मेरे को बोलो कि कोविड वायरस का सर जो दवाई है वो कैसे निकलेगा, वो भी पूछ लो, ठीक है? बता दे रहा हूं, ठीक है? फिर मेरे को उठा के ले जाएगा ट्रम्प, ठीक है? सो द आइडिया इज प्लीज टॉक इन द कॉन्टेक्स्ट। आई हैव टेकन एनफ ऑफ योर नॉनसेंस, प्लीज डोंट ruin my class. Next time you'll be thrown out. I am not like this. Every student knows, ठीक है? Okay, now, all right, I'm sorry guys, yeah. So
ओके, नाउ एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज। वापस फ्लो में जाने के लिए वापस बोल रहा हूं शुरू से। मैं स्टार्ट किया विथ एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसके पहले तक मैं पढ़ा चुका था कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस एग्रीमेंट का डेफिनेशन तक क्लास में। उसके बाद मैं बोला 11 एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें कि 6 एसेंशियल्स एक्ट में लिखा है और 5 एसेंशियल्स एक्ट में नहीं लिखा है, इंटरप्रेटेड है। समझो मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। कभी कभार हम लोग को सुन के सीखना पड़ता है, तो तभी तो क्लास लेते हैं। खुद से पूछते रहोगे तो सीख नहीं पाओगे। ठीक है, सुनने के बाद तुम पूछो, पेशेंस रख के, वो ठीक है। और जितना सुना उसमें पूछो, वो भी और ठीक है। Because you are starting and standing here, so you will have this many queries, I know, but in order to contain your mind, in order to contain, जब हम लोग को अंधेरे में एक चीज दिखे, बाकी चीज नहीं दिखता है, तब हम लोग को बाकी चीज देखने का सवाल आता है। ये मेरे को पता है, सबको बोल रहा हूँ इंक्लूडिंग सौरभ, सीखो। बट इसका मतलब ये नहीं मैं सारा सवाल एक दिन में एक साथ मेरे को आंसर मिल जाएगा। सीखने का सबसे बड़ा सबक है पेशेंस। मैं आज ही क्लास में बोला स्लो लर्निंग, शाइन को भी बोल लो स्लो लर्निंग। ठीक है, होल्ड योर हॉर्सेस, कितना कुछ सीख रहे हो ना। होल्ड योर हॉर्सेस मींस हैव पेशेंस, इट्स अ प्रोवर्ब। ठीक है, if you want to learn, if you want to achieve something, if you want to achieve greatness, have patience. The moment you lose patience, you will never achieve something or you will never learn something. Okay, so like there are 6 essentials given in the act. There are 6 essentials given in section 10 and 5 are not given in section 10 but they are interpreted. 6 essentials given in section 10 से हम लोग start किए, उसमें थर्ड एसेंशियल में अपने है। फर्स्ट एसेंशियल क्या था ना, देख के अग्रीमेंट। अग्रीमेंट होना चाहिए तभी तो कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा। दूसरा एसेंशियल क्या था, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट यानी कि पार्टीज जो सहमति दे रहे, पार्टीज जो सहमत हो रहे, उन पार्टीज का जो सहमति आ रहा है, वो सहमति कैसे आ रहा है, खुला या फोर्सेबली, फ्री। यू कैन रेस्पॉन्ड नाउ, फ्री। एंड फ्री कंसेंट कब कहलाया जाएगा, जब कंसेंट वो 5 में से एक भी चीज से नहीं बना। कौन कौन 5, ये नाम तो बोलो, क्या सीखे हो। कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। इनमें से कोई भी एक चीज से अगर कॉन्ट्रैक्ट बना तो वो कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट नहीं है और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। इतना ही तो बोला, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, और competency of the parties is also important. Competency of the party is the third essential element of a valid contract and उसमें मैं बोल रहा हूं कि incompetent party कब कब होगा। मैं पहला केस बोला कि पार्टी को कॉम्पिटेंट होने के लिए 18 या अबव होना पड़ेगा उसका उम्र, यानी कि मेजर एंड माइनर। Minor is incompetent to enter into a valid contract, major is competent to enter into a valid contract. And then I said mind लेस बहुत लोग होते हैं, माइंड साउंड होना चाहिए, साउंड माइंड। ठीक है, साउंड माइंड होना चाहिए, और साउंड माइंड में जो साइन कर रहे हो वो वैलिड है, जो अनसाउंड माइंड में साइन कर रहे हो वो वैलिड नहीं है। अनसाउंड माइंड किसका किसका होता है, अनसाउंड माइंड होता है नंबर वन अनसाउंड माइंड किसको कहलाया जाता है, पागल को, इंसेन, मैड, क्रेजी, जो भी बोलो वो सारा, और भी कुछ बोल सकते हो। सो मैड, क्रेजी, पागल, जो भी होता है उसका माइंड अनसाउंड रहता है। सर ल्यूनाटिक, यस ल्यूनाटिक, ओके, नट केस, बहुत कुछ है। ठीक है, तो जो भी हो, द आइडिया इज अनसाउंड माइंड में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं तो उसको इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा ऑन ग्राउंड्स दैट द पार्टी इज कॉम्पिटेंट और इनकॉम्पिटेंट। सर सिर्फ अनसाउंड माइंड क्या पागलपन से ही आता है, टेम्पोररी इंसैनिटी से आ सकता है? हाँ, जब तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तब अगर तुम्हारा माइंड अनसाउंड है तभी तुम इनकॉम्पिटेंट हो। यानी कि a drunk person, is he unsound throughout or is he unsound only when he's drunk? Only when a person is drunk he is unsound,
Otherwise, in the morning when he is in office, he is not unsound. मेरा बात समझे? सो अनसाउंड माइंड का नैरो डेफिनेशन मत समझना. अनसाउंड माइंड का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त उसका माइंड का स्टेट देखा जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त इफ ही इज ड्रंक देन ही विल बी कंसीडर्ड अनसाउंड इवन दो ही इज नॉट पागल. कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त ही इज डिस्टर्ब्ड एंड ही इज क्रेजी, then he is signing a contract, then he is incompetent, even though in other times he is competent. So at the time of signing of contract, it is to be seen whether the person is in sound mind or unsound mind in order to check his competency as a party. Is it clear? Okay. Now ये सब में डेप्थ में है हम लोग. Okay. Now sir, तो ये दो तो हो गया. और भी इनकॉम्पिटेंसी है? हाँ, और भी है, और भी है. समझते हैं सर? समझते हैं. नंबर 1, नंबर 3. ओके, थर्ड नंबर, माइनर, मेजर, साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड. एंड नंबर 3 इज बहुत लोग ये सुने हो, सॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट. सुने हो ना? नहीं भी सुने होंगे तो मैं बताऊंगा, डोंट वरी. When a person is unable to pay off his debts, when a person is unable to pay off his debts, he is known as a insolvent व्यक्ति. दिवाला निकल गया, हिंदी में बोला जाता है दिवाला निकल जाना, यानी कि इंसॉल्वेंट बन गया, यानी कि उसका एसेट्स सफिशिएंट है नहीं लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने लायक. यानी कि एसेट्स गिर गया, लाइबिलिटीज बढ़ गया. तो लाइबिलिटीज बढ़ गया मतलब वो कभी चुका नहीं पाएगा, एसेट्स नहीं है. लोन लेके बिजनेस कर रहा है कोई, लोन का अमाउंट तो कांस्टेंट है, उसमें इंटरेस्ट कांस्टेंट है, बिजनेस में नुकसान होते जा रहा है. तो लोन लेके जो एसेट्स खरीदा वो सारा एसेट्स, बिजनेस एसेट्स डिप्लीट होते जा रहा है, बट लोन का अमाउंट तो वही का वही है. बात समझे? सो सच अ पर्सन हैज अ हाई रिस्क ऑफ बीइंग और बिकमिंग बैंकक्रप्ट और इंसॉल्वेंट. एंड सच एन इंसॉल्वेंट व्यक्ति को इंडियन कानून हक नहीं दे रहे कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे, क्योंकि इंसॉल्वेंट व्यक्ति अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे तो वो और फंसाएगा लोगों को, और फंसाएगा लोगों को. तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने लायक कॉम्पिटेंट पार्टी कौन है? सॉल्वेंट या इंसॉल्वेंट? सॉल्वेंट. सॉल्वेंट. अ फाइनेंशियली साउंड पर्सन और अ फाइनेंशियली सॉल्वेंट पर्सन इज entitled to enter into a valid contract as a competent party to a contract. Competent party कौन बन पाएगा? Solvent, ना कि insolvent. Okay सर. सर बताइए कि solvent या insolvent तय कौन करेगा? पार्टीज खुद या कोर्ट? कोर्ट. कोई भी व्यक्ति insolvent तुम बोलने से नहीं बनोगे. तुम तो अपना दोस्त के साथ फुचका खाने गए और दोस्त के पास पैसा नहीं है, तुम दे दिए उसके लिए, फिर बाद में तुम दोस्त को बोले इंसॉल्वेंट, क्या वो इंसॉल्वेंट बन जाएगा? नहीं, तुम्हारा कहने पे नहीं बनेगा. जब कोर्ट में ये प्रूव होगा, कोर्ट जब डिक्री देगा, डिक्री का मतलब होता है ऑर्डर. व्हेन अ कोर्ट इश्यूज अ डिक्री, व्हेन अ कोर्ट गिव्स अ ऑर्डर, देन इन दैट केस ओनली दैट पर्सन बिकम्स एन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, जिसको बोला जाता है एडजज्ड इंसॉल्वेंट. ये सब बाद में भी है, तो डरो मत. अभी जो कह रहा हूं वो करो, सुनो, कान खोल लो, सुनो. ओके, नाउ insolvent is not a person who is insolvent by himself or by the society. He must be a declared insolvent. इसको क्या बोला जाता है? Declared insolvent. कौन डिक्लेयर किया? कोर्ट ऑफ कोर्स. And who is competent? A solvent. Okay sir. सर तो आप बोले माइनर इज इनकॉम्पिटेंट, मेजर इज कॉम्पिटेंट, अनसाउंड माइंड इज इनकॉम्पिटेंट, साउंड माइंड इज कॉम्पिटेंट, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट इज इनकॉम्पिटेंट, एंड solvent is competent. As easy as that. As easy as that. Now, before I go ahead, once again, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? Essentials of a valid contract. 11 essentials है, उसमें से
11 एसेंशियल्स एलिमेंट्स में से 6 एसेंशियल्स सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट में दिया हुआ है और 5 एसेंशियल्स इंटरप्रेटेड है, बोरोड है, ठीक है ना। नाउ 11 एसेंशियल्स में 6 एसेंशियल्स जो सेक्शन 10 के है उसमें पहला वाला है एग्रीमेंट, दूसरा वाला है फ्री कंसेंट, तीसरा वाला है कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। और कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज में 6 पॉइंट है, उसमें से 3 पॉइंट मैं कवर कराया, इनकॉम्पिटेंट और कॉम्पिटेंट कौन कौन है। अभी बाकी 3 पॉइंट बोलूंगा, ध्यान से सुनना। यहां तक पूरा दिमाग क्लियर है ना? देखो रोज जो सीख रहे हो क्लास में एकदम सीख जा रहे हो, बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है कभी कभार, आज हुआ, ठीक है, ओके। बट ये शुरुआत में हो जाना अच्छा है, तुम लोग सीख जाओगे क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे सीखना है, तो ये बढ़िया रहेगा। ओके, नाउ ध्यान देना, फोर्थ पॉइंट इन कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी इज दैट ऑफ अ एलियन एनिमी। सर हु इज द एलियन एनिमी, बताओ एलियन एनिमी है कौन सर? एलियन एनिमी है कौन? इसका आंसर मैं दूंगा, if someone knows he or she can type, but I can tell you alien enemy is not pertaining to alien, मतलब जो एलियन मूवीज तुम लोग देखते हो वो एलियन नहीं। यहाँ पे एलियन एनिमी का मतलब कुछ और ही है। एलियन एनिमी का मतलब होता है कि कोई भी कंट्री जिसके साथ इंडिया का वॉर चल रहा है, इफ इंडिया और आवर कंट्री इज इन वॉर विथ एनी अदर कंट्री, अभी भी कोई कंट्री के साथ वॉर नहीं चल रहा है ऑफिशियली, इंडिया का वॉर डिक्लेयर होता है, तो कोई भी कंट्री के साथ अगर हम लोग का वॉर डिक्लेयर हो गया तो उस कंट्री का सिटीजन्स को एलियन एनिमी कहलाया जाएगा। और वैसा कंट्री का सिटीजन्स के साथ तब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना जायज है या नाजायज है? नाजायज है। इसीलिए वो बोल दे रहे हैं कि एलियन एनिमी के साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। एलियन एनिमी इज कॉम्पिटेंट और इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट? इनकॉम्पिटेंट। सो हु इज कॉम्पिटेंट? एन एलियन फ्रेंड। एलियन एनिमी का ऑपोजिट क्या होगा? एलियन फ्रेंड या नॉट एलियन एनिमी। क्लियर है? ओके, नंबर 5। अच्छा मेरे को बताओ कैदी का इंग्लिश क्या होता है? कॉन्विक्ट। सुने हो ना कॉन्विक्ट? अच्छा बोलो, सलाखों के पीछे सजा काट रहे ऐसा मुजरिम या ऐसा कॉन्विक्ट, सजा काटने वाला, will that convict be allowed to enter into a valid contract? No. वो तो जेल के अंदर से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा, फिर बोलेगा अरे मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो ऑलरेडी जेल में हुआ और क्या कर लूंगा, हाँ या ना? तो इसीलिए कॉन्विक्ट इज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्विक्ट फ्री पर्सन, सो हु कैन डू फ्री पर्सन? सर बट मेरे को एक चीज बताइए, आप लोग एक एक्टर का नाम सुने हो? There's this actor in India called Sanjay Dutt. There's an actor in India called Sanjay Dutt. Of course, most of you have heard, probably. There was a movie on him, Sanju. So, this person called Sanjay Dutt, he was once accused of a heinous crime. He was set to, and he was found in possession of some dangerous arms. AK-47, and due to that he was convicted way back in 90s, terrorist kind of activity के लिए, and he was accused and convicted and he was sent to prison. He was serving time, सजा काट रहा था, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सर्विंग टाइम। और बीचों बीच कभी कभार वो बाहर निकल रहा था बेल पे, सुनो ना, बेल, टेम्पोररी रिलीज को बेल कहा जाता है। बेल पे जब बाहर आ रहा था, ही वाज शूटिंग अ मूवी। हाउ इज दैट पॉसिबल? जब जेल के अंदर हो देन यू आर अ कॉन्विक्ट, जब बेल पे बाहर आ गया टेम्पोररी रिलीज पे भी, यू आर नॉट अ कॉन्विक्ट। अगर कॉन्विक्ट रहते तो जेल के अंदर ही रहते ना,
तो एक कॉन्विक्ट जब जब बाहर आएगा परमानेंटली या टेम्पोररीली, कैन ही एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? यस। कॉन्विक्ट जब टेम्पोररीली या परमानेंटली रिलीज मिलेगा उसको, इवन इफ टेम्पोररी रिलीज, then also he is a free person to enter into a valid contract. मेरा बात समझे? So the idea is convict is incompetent, and convict कौन है? जो जेल के अंदर है, और competent कौन है? जो free person है। competent कौन है? जो free person है, ठीक है ना? जो free person है वो competent है, incompetent है convict। and I have told you, कॉन्विक्ट अगर टेम्पोररी बेल लेके या टेम्पोररी रिलीज उसको मिलता है, फिर भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर पाएगा, बट जब तक वो अंदर है, कैन ही एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नो, नो। ओके, द लास्ट पॉइंट, 6th पॉइंट। ओके, व्हाट इज द लास्ट पॉइंट? once again the last point is something like this. The last point is something like this, that ये जो अपना फॉरेन डिप्लोमैट्स रहते हैं, फॉरेन डिप्लोमैट्स सुने हो ना? फॉरेन एम्बेसी है ना? फॉरेन डिप्लोमैट्स जो रहते हैं, फॉरेन डिप्लोमैट्स का क्या कानून है सर, थोड़ा बताइए। फॉरेन डिप्लोमैट्स का कानून कुछ ऐसा है कि आज अगर मैं कोई फॉरेन डिप्लोमैट का पोजीशन में कहीं पोस्टेड हूं, if I am posted as a foreign diplomat in somewhere, Indian foreign diplomat बाहर में कोई कानून मैंने तोड़ा, तो मेरे को सजा बाहर में नहीं मिलेगा। क्यों? आई विल बी इम्यून फ्रॉम देयर कानून, मतलब उन लोग का कानून मेरे को छू नहीं पाएगा, क्योंकि मैं इंडियन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हूं और फॉरेन डिप्लोमैट हूं। वैसे ही बाहर का कंट्री का कोई फॉरेन डिप्लोमैट इंडिया में घूम रहे और इंडिया का कोई कानून वो तोड़ दिया, तो इंडिया में उसको सजा नहीं दे पाएंगे हम लोग। बट क्या सर, ये तो गलत है, उसका सजा नहीं होगा, आपका सजा नहीं होगा। आप अगर इंडियन गवर्नमेंट का फॉरेन डिप्लोमैट हो बाहर में, सजा होगा, बट उन लोग का कानून से नहीं होगा, खुद का कानून से होगा। खुद का कानून से मतलब डोमेस्टिक कंट्री का, इंडिया का। और वैसे ही कोई यूएस का डिप्लोमैट अगर इंडिया में है और इंडियन कानून वो तोड़ता है, तो उसका सजा भी इंडियन कानून के जरिए नहीं होगा, अपना खुद का कानून के जरिए होगा। ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये एक अंडरस्टैंडिंग और ट्रीटी है इंटरनेशनली, जो इम्यून कर देता है फॉरेन डिप्लोमैट्स को जिस कंट्री में वो है, उस कंट्री का कानून से। तो बोलो, क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉरेन डिप्लोमैट्स के ऊपर लागू हो सकता है? इंडियन कानून है तो नहीं। सेम रीजन, सो फॉरेन डिप्लोमैट्स आर इनकॉम्पिटेंट, एंड फॉरेन डिप्लोमैट्स जो नहीं है ऑफ कोर्स वो कॉम्पिटेंट है। once again we are doing 11 essential elements, उसमें 6 essential elements are given in section 10, and 6 essential elements में number 1 is agreement, number 2 is free consent of the parties। free consent of the parties ना देख के जो लोग घर में हो, खुद से बोलो, खुद से ना देख के बोलो मेरे साथ, एज इफ क्लास में हो मेरे सामने, ठीक है ना? फ्री कंसेंट में 5 थिंग्स कैन अफेक्ट फ्री कंसेंट। नंबर 1 इज कोएर्शन, ऐसे बोलो कोएर्शन। नंबर 2 इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। नंबर 3 इज फ्रॉड। नंबर 4 इज मिसरिप्रेजेंटेशन। नंबर 5 इज बोलो, नंबर 5 इज मिस्टेक। ओके, नाउ सर अब जल्दी से ध्यान से सुनना और मेरे को बताना कि 3rd पॉइंट क्या था? पार्टीज को कॉम्पिटेंट होना चाहिए। पार्टीज को कॉम्पिटेंट होना चाहिए, तो मेरे को बताना पार्टीज को कॉम्पिटेंट होने के लिए, फॉर द पार्टीज टू बिकम कॉम्पिटेंट, देयर आर 6 पॉइंट्स आई सेड। मेजर होना पड़ेगा, माइनर होने से नहीं होगा। माइनर इज इनकॉम्पिटेंट। हु इज अ माइनर? बिलो 18 years ऑफ एज। अनसाउंड माइंड होने से नहीं होगा, साउंड माइंड का होना पड़ेगा। सर अनसाउंड माइंड कौन है? पागल भी अनसाउंड माइंड है, ड्रंक भी अनसाउंड माइंड है। एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट यू हैव टू बी इन साउंड माइंड। सर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मैं तो बोल दिया,
कोई अगर इंसॉल्वेंट है तो फिर वो एलिजिबल नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सॉल्वेंट है। एलियन एनिमी, मैं अभी बोला, इंडिया के साथ कोई भी मुल्क का अगर युद्ध हो रहा है, वॉर हो रहा है कोई भी कंट्री का, तो फिर वैसा कंट्री का सिटीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? एलियन एनिमी, टेक्निकल टर्म। कॉन्विक्ट, जो मुजरिम सलाखों के पीछे है, सजा काट रहा है, कॉन्विक्ट, ठीक है ना। और लास्टली फॉरेन डिप्लोमैट्स या एम्बेसडर्स। इज इट क्लियर सो फार? ओके सर। सर ये पूरा एकदम समझ में आया, एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। नाउ द फोर्थ पॉइंट, लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? बताइए। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब क्या है? अच्छा बोलो, कंसिडरेशन का मतलब ही क्या है पहले समझो। कंसिडरेशन मीन्स बदले में कुछ। लिख सकते हो हिंदी में, लिख सकते हो हिंदी में, जाके याद रहे। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ। हर कॉन्ट्रैक्ट में, मैं अगर प्रॉमिस, कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट रहता है। एग्रीमेंट क्या होता है? प्रॉमिस, मतलब मैंने किसी को वादा किया। और प्रॉमिस का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे। प्रॉमिस मीन्स व्हाट? ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड। So when I offer to do something, I also expect to get something. So the return which I am expecting is consideration for me, and the return which the promisee is getting is the consideration for him or her. So that is consideration. Consideration तो रहना ही पड़ेगा एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए। और ये कंसिडरेशन, बोलो, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट को क्या लगता है? एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ या नॉट एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ? एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। यानी कि इफ अ कॉन्ट्रैक्ट agreement is enforceable by law, then only that agreement will be known as a contract. And that means कोई भी प्रॉमिस लीगली एनफोर्स होने के लिए उस प्रॉमिस में कंसीडरेशन को लॉफुल होना पड़ेगा या अनलॉफुल होने से भी चलेगा? लॉफुल होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अनलॉफुल चीज लीगली एनफोर्स नहीं हो सकता है। गॉट इट? So that's why the term is lawful consideration, not only consideration. So like I said, once again I will technically teach you, which I am doing. तो जो लोग ज्यादा इधर उधर का क्वेरी कर रहे हो, जो पढ़ा रहा हूं उस कॉन्सेप्ट में ध्यान दो, ठीक है? सो लाइक आई सेड, हर कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज एंटर करेगा, एक पार्टी कुछ वादा करेगा दूसरा पार्टी को, तो दूसरा वादा पार्टी भी एक पार्टी को वादा करेगा। It will be a set of promises made by each other. One party's promise is consideration for me and my promise is consideration to him. दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ देंगे। कंसिडरेशन का मतलब है बदले में क्या मिल रहा है, समथिंग इन रिटर्न। तो ये कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए या अनलॉफुल? लॉफुल, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या होता है? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। और एग्रीमेंट तभी एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा जब कंसिडरेशन इन्वॉल्व क्या होगा? लॉफुल या अनलॉफुल? लॉफुल। That is why the fourth essential element given is lawful consideration. Once again, agreement होना पड़ेगा। agreement free consent of the parties से होना पड़ेगा। किसके बीच? competent parties के बीच। और जो consideration वादा किया जाएगा वो consideration क्या होना पड़ेगा? That consideration has to be lawful. Okay, now fifth point is legal object. legal object, ठीक है? Yeah, fifth point is legal object. Okay, now sir, legal object का मतलब क्या है? बहुत आसान मतलब है, ऑब्जेक्ट या इरादा या मकसद कॉन्ट्रैक्ट का लीगल होना चाहिए, तभी तो लॉफुली एनफोर्स हो पाएगा। एक लाइन का चीज है ये। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? इरादा, पर्पस। वो ऑब्जेक्ट लीगल या इलीगल होने से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? लीगल। इसमें पूछने का क्या है सर? ये तो हम लोग को भी पता है। हाँ पता है, बोल दिया, समझा दिया, नहीं तो उसका भी सवाल आता। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट मस्ट बी लीगल, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, यही बोल रहे हैं। ओके सर,
Lastly, the last point, not expressly declared to be void. Not expressly declared to be void. Not expressly declared to be void. सर इसका मतलब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनते रहना, बहुत ही आसान तरीके से सुनना. नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. पहले मैं समझाऊंगा, ये टर्म का मतलब लिख लेना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइड? वॉइड मीन्स एनीथिंग. मैं वोकैबुलरी टर्म में दे रहा हूं. वोकैबुलरी टर्म मतलब सोचने के लिए, लिखने के लिए नहीं, बट लिख लो तभी सोच पाओगे. एनीथिंग विच कैन नॉट बी लीगली अफेक्टेड. एनीथिंग, उसका और एक, एनीथिंग विच डज नॉट हैव लीगल इफेक्ट. दोनों का मतलब ही क्या है? वॉइड. दोनों तरीके से समझाया जाके मीनिंग ऑफ द टर्म वॉइड क्लियर हो. ठीक है, मीनिंग ऑफ द टर्म वॉइड क्लियर हो. ओके, नाउ सर मीनिंग ऑफ वॉइड ये है. हाँ ठीक है, एनीथिंग विच कैन नॉट बी लीगली इफेक्टेड, जिसको कोई लीगल इफेक्ट नहीं दे पाओगे, और जिसका कोई लीगल इफेक्ट है नहीं, वैसा चीज वॉइड होता है. अब सुनो, इंडिया में गैम्बलिंग वॉइड है. गैम्बलिंग क्या होता है मेरे को मत पूछना, भी सबको मालूम है, नालायक लोग. ठीक है, गैम्बलिंग इंडिया में जुआ वॉइड है, एक्सप्रेसली वॉइड है. क्या है? एक्सप्रेसली वॉइड. मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लिखना है तो लिख सकते हो. इन इंडिया वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स या गैम्बलिंग आर एक्सप्रेसली वॉइड. एक्सप्रेसली मतलब बोला हुआ है कि वॉइड है. वॉइड है तो वॉइड है, ये बोल दिया गया है. तो बोलो, गैम्बलिंग का कोई कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड हो सकता है? नहीं. तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी expressly declared void or not expressly declared void. Not expressly declared void. Once again, meaning of the word void means that anything which cannot be legally affected. इंडिया में वेजरिंग या गैम्बलिंग इज वॉइड. इंडिया में वेजरिंग और गैम्बलिंग इज वॉइड, डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. एंड क्या हम लोग वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट या गैम्बलिंग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं? गैम्बलिंग में नहीं. क्यों? क्योंकि वो बोला हुआ है वॉइड. तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सप्रेसली वॉइड है उसमें हम लोग एंटर नहीं कर पाएंगे वैलिडली. तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए? पॉइंट नंबर 6 होना चाहिए कि द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. क्लियर है? ओके, नाउ I will quickly summarize what we have studied today. It looks like we have studied very small, but actually we have studied this much. I'll show you in the book. But prior to going to the book, I will just sum up. हम लोग क्या क्या पढ़े? हम लोग पढ़े क्वेरी वाले. मैं क्वेरी को अटेंड करूंगा. क्वेरी अटेंड करने से पहले, क्वेरी लास्ट 10 मिनट्स में मैं अटेंड करता हूं हमेशा. तो क्वेरी अटेंड करने से पहले मैं एक बार पूरा रिवीजन करा दे रहा हूं. ध्यान से सुनना, और यहां तक आप लोग को पढ़ के आना है. नेक्स्ट लॉ क्लास जो कि नेक्स्ट बुधवार को है, और बीच में बीसीआर है फ्राइडे परसों. ठीक है, अब ध्यान से सुनना. और बीसीआर में जो होमवर्क दिया था वो कर लेना. ओके, आने से पहले मैं होमवर्क देखूंगा, दिखाने के लिए कहूंगा कॉपीज वीडियो ऑन करके. दैट्स हाउ आई विल चेक होमवर्क. ठीक है, अभी कह दिया. ओके, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब ध्यान देना, 11 essentials of a valid contract है. 6 are given in section 10 and 5 are derived but not given in the act. 6 essentials given in section 10, मैं बोला था एग्रीमेंट होना पड़ेगा, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज होना पड़ेगा. फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कब कब टूटता है? 5 में से एक चीज होने से, कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन. कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज होना पड़ेगा. कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज क्या क्या है?
मेजर होना पड़ेगा 18 या अब, साउंड माइंड होना पड़ेगा, सॉल्वेंट होना पड़ेगा, एलियन एनिमी नहीं होना पड़ेगा, कॉन्विक्ट नहीं होना पड़ेगा और फॉरेन डिप्लोमैट नहीं होना पड़ेगा, और उल्टा पूरा क्या है, इनकॉम्पिटेंट पार्टीज। फिर मैं बोला ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन क्या होना चाहिए, लॉफुल, लीगल, एंड लास्टली आई सेड के एग्रीमेंट must not be expressly declared void. Okay, now I have revised. I will show you the book and give you the homework, then I'll come to query. Serially we are organized way में सब कुछ कर रहे हैं, ध्यान से देना, एकदम चुप रहना. Okay, now of course mute हो. Okay, now अब मैं एक एक करके बोलूंगा. When at the time of war we declare a country to be our enemy, yes. A person belonging to a foreign country with which India is at war, absolutely. सब ये query नहीं है, तुम लोग लिखे हो. Alien enemy means foreign enemy. Neha has written. Very, very good. Now, Jatin has asked why there is a prefix alien with the friend. Can you please explain that, sir? Alien friend मैं opposite word किया. Alien friend बोल के कोई term नहीं था to Jatin and to others जिन लोग का ये query है. Prefix alien मैं ऐसे नहीं बैठाया. Alien enemy का opposite क्या होगा? Alien friend. उस हिसाब से बोला. Alien means foreign यहाँ पे. Okay, sir, please explain the last point again, Raghav Goel. Last point again, मतलब मैं समझ में नहीं आया last point कौन सा था. तुम अगर लिख पाओगे last point कौन सा तुम समझना चाहते थे राघव गोयल, तो वापस लिख सकते हो, मैं समझा दूंगा. Sir, what is the difference between point 4 and point 5? Both are related to the same thing, that is legality. Yes, both are related to the same thing, but one thing is consideration and the other thing is object to Jatin. Okay, one thing is consideration and object. Consideration and object दोनों अलग है. क्या डिफरेंस होगा? लीगल तो होना ही पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए. नाउ एक क्वेश्चन है, suppose a foreign diplomat comes to a country where gambling is legal and gambles in India where gambling is illegal, so that means his country will not convict him. नहीं, उसको अपना कंट्री का रूल से सजा मिलेगा. उसका अपना कंट्री में ऐसा कुछ रूल होगा, कानून होगा, जहां पे बोला होगा कि जिस कंट्री में जो इलीगल है वो तुम करने से तुमको क्या सजा मिलेगा. नौकरी जा सकता है. ठीक है, इकरा. ओके, कैन यू रिपीट बीसीआर होमवर्क? कैन आई रिपीट बीसीआर होमवर्क? ज्योतिका, यस आई कैन. बीसीआर में चैप्टर 1 में पढ़ाया कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन जहां तक पढ़ाया पूरा पढ़ लेना, पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करके आना. नीचे एक केस स्टडी है, वो केस स्टडी पढ़ लेना ज्योतिका, सब लोग. Jatin Poddar said, okay, understood. Thank you, Jatin. Nandini, sir, what is section of void? Not interested in sections right now, but तुम लिख लो, जानने का कोशिश किया. 2J, section 2J. ठीक है, ये सेक्शन का डेफिनेशन नहीं दिया नंदिनी, मैं तभी कह दिया कि ये, मैं क्या बोला, I use the term vocab. I use the term vocab. vocab मतलब मैं सेक्शनल डेफिनेशन पढ़ाया भी नहीं, दिया भी नहीं. ठीक है, तुम पूछ रहे, मैं बता दिया. ठीक है, यही सवाल पे मैं गुस्सा किया था सौरभ के ऊपर. ओके सर, द पॉइंट ऑफ फॉरेन डिप्लोमैट्स. पॉइंट ऑफ फॉरेन डिप्लोमैट्स तो अभी वापस बोला राघव गोयल. आई गेस इट्स क्लियर. सर प्लीज एक्सप्लेन मिस रिप्रेजेंटेशन वंस अगेन. मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब, मिस रिप्रेजेंटेशन मैं समझाया नहीं, मैं यूनिट 2 में समझाऊंगा, इसलिए समझाया ही नहीं. वंस अगेन कैसे समझाऊं? अगेन मतलब वंस ही नहीं समझाया. जतिन अंडरस्टूड. Jyotika, okay. Nandini, okay. Okay, all right. All queries I've addressed. We have just one thing to do. That is, मैं एक बार मेरे तरफ से बुक दिखाना चाहता हूँ. बुक में देखो एक एक करके सारा लिखा है, एक एक करके सारा लिखा है, बट बुक में स्टार्ट किया वो लोग ये पॉइंट, ये 5 पॉइंट से, यानी कि नॉट कवर्ड बाय सेक्शन 10, जो कि नेक्स्ट क्लास अपने पढ़ेंगे. बुक में स्टार्ट किया नॉट कवर्ड वाला पॉइंट से, और फिर कवर्ड वाला पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ, सेक्शन 10 वाला. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट के अंदर तुमको मिलेगा वो सारा पॉइंट्स मैं जो बोला, और उसको देखो बुक में भी नहीं समझाया, क्योंकि बुक में भी समझाया जाएगा यूनिट 2 में, जो मैं बोल दिया, बट फिर भी मैं समझा दिया, नहीं तो मन में बहुत दिक्कत होता है. कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, ठीक है,
तो देखो माइनर मेजर बोला, साउंड माइंड बोला, is not disqualified from contracting by any law to which she is subject. वही चीज, foreign sovereigns, alien enemy, convicts, ठीक है ना? ओके, consideration, lawful consideration on object and not expressly declared to be void. Okay, so all these we have done. Just the points not covered by the act, 5 points next class hoga, and next class we will continue. I hope I have solved all queries. ठीक है, please, we are meeting and continuing in the next class. Next class यहाँ तक पढ़ के आना. Thank you. Goodbye.